عزیز طلباء و طالبات، آپ سبھی کا آج کی اس ویڈیو میں دل سے خیر مقدم ہے۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ میں مصعب سر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ۔ تو بچوں، آج ہم 10ویں جماعت کی جغرافیہ کے چوتھے سبق آب و ہوا اس کے سوال و جواب کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کے الف، بے اور جیم سوالات کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس کے آگے کے سوالات و جوابات کا مطالعہ کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ساتھ 10ویں جماعت کی جغرافیہ کی درسی کتاب لیجئے اور اس میں صفحہ نمبر 31 نکالیے اور سوال نمبر 3 کا دال دیکھیے، جیسا کہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جس میں دال وجہ ہے 4 نمبر کی۔ برازیل میں منطقہ حارہ کے گردباد طوفان کم پیمانے پر آتے ہیں۔ برازیل میں منطقہ حارہ کے گردباد طوفان کم پیمانے پر آتے ہیں، جس کی وجہ ہے برازیل کے ساحلی علاقوں میں خط استوا کے قریب درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں عمودی سمت ہوائیں بہتی ہیں۔ اس طرح بین منطقہ حارہ کا مجموعی حصہ کم ہونے کی وجہ سے گردباد طوفان تیار نہیں ہوتے، اس لیے برازیل میں منطقہ حارہ کے گردباد طوفان کم پیمانے پر آتے ہیں۔ تو بچوں، اس کا جواب یہی مکمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہم 5 نمبر کی، یعنی ہے جو وجہ ہے میناس شہر کے درجہ حرارت کے مدارج میں سال بھر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، جس کا جواب ہے میناس شہر خط استوا کے قریب واقع ہے، اس لیے سال بھر سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی پڑتی ہے اور اس وجہ سے وہاں گرمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سال بھر درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے میناس شہر کے درجہ حرارت کے مدارج میں سال بھر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ اس کا بھی جواب ہی مکمل ہوا۔ اب دیکھیں گے 6 نمبر کی وجہ واو، جو آخری وجہ ہے اور آخری سوال ہے سوال نمبر 3 کا۔ شمال مشرقی مانسون ہواؤں کی وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ شمال مشرقی مانسون ہواؤں کی وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے، جس کا جواب ہے بھارت میں خصوصاً جنوب مغربی موسمی ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ یہ جنوب مغربی موسمی ہوائیں بھارت کے جنوب سے بھارت میں داخل ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ شمال کی جانب بڑھتی ہے۔ یہ جنوب مغربی موسمی ہوائیں ہمالیہ کے شمالک اور ہماچل کے سلسلوں سے ٹکرا کر بحر ہند کی جانب پلٹتی ہے۔ شمال مشرق کی سمت سے بحر ہند کی جانب پلٹنے پر ان شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھارت کے جزیرہ نما حصے پر دوبارہ مانسون کی واپسی کی بارش ہوتی ہے۔ اس طرح شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہ وجہ بھی یہاں پر مکمل ہوئی اور اسی کے ساتھ ہمارا سوال نمبر 3 پورا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 4، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے، جس میں ہے الف، پہلے نمبر کا سوال، جنوب سے شمال کی جانب بھارت کی آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کو مختصراً بیان کیجیے۔ جنوب سے شمال کی جانب بھارت کی آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کو مختصراً بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے بھارت کے درمیان سے گزرنے والے خط۔ بھارت کے درمیان سے گزرنے والے
खते सरतान तक सूरज की शुआएं उमूदी पड़ती है, इसलिए इस इलाके में दर्जे हरारत ज़्यादा होता है जो जुनूब की जानिब बढ़ता जाता है, और शुमाल की सीम जाते वक्त दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है। मौसम सरमा में जम्मू व कश्मीर, हिमालयाई पहाड़ी इलाकों के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जुनूब में मानसूनी हवाओं की वजह से खूब बारिश होती है। बारिश का औसत शुमाल की जानिब बतदरीज कम होता जाता है। भारत के शुमाल मगरिब में राजस्थान के इलाके में बारिश का तनासुब निहायती कम हो जाता है, इसलिए यहाँ रेगिस्तान वजूद में आए हैं। जम्मू व कश्मीर में सर्दियों में बर्फबारी होती है। यूरोप में नवंबर के महीने में चेन्नई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि शुमाल में दिल्ली के मकाम पर अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो बच्चों, इसी के साथ सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ मुकम्मल हुआ। तो बच्चों, आप देखेंगे सवाल नंबर 2 यानी बे, भारत की आबोहवा में बहरे हिंद और हिमालय की अहमियत मुख्तसरन लिखिए। भारत की आबोहवा में बहरे हिंद और हिमालय की अहमियत मुख्तसरन लिखिए। उसका जवाब है, बहरे हिंद और हिमालय का भारत की आबोहवा पर ज़बरदस्त असर पड़ता है। हिमालय की वजह से शुमाल जानिब से आने वाली इंतहाई सर्द हवाएं रुक जाती है। इस तरह जुनूब मगरबी मौसमी हवाएं हिमालय, शिवालिक और हिमाचल सिलसिलों की वजह से वापस हो जाती है। पंजाब का मैदानी इलाका और राजस्थान के थरके रेगिस्तान में गर्म आबोहवा की वजह से मौसम गर्मा के आगाज में कम दबाव का पट्टा बनता है, जिसकी वजह से बहरी हिंद में ज़्यादा दबाव के पट्टे से भारत की सरजमीन की तरफ हवाएं बहने लगती है। इन बुखारात से लदी हुई हवाओं की वजह से भारत में बारिश होती है। तो सवाल नंबर 4 का बे का जवाब भी यहाँ मुकम्मल हुआ। अब देखेंगे जीम जो है सवाल नंबर 3, ब्राज़ील की आबोहवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखिए। ब्राज़ील की आबोहवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखिए। इसका जवाब है, खते इस्तिवा की कुर्बत। खते इस्तिवा की कुर्बत, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, अजीम उमूदी चट्टान वगैरह अवामिल ब्राज़ील की आबोहवा पर असरअंदाज होते हैं। ब्राज़ील की अर्जुल बलदी उसद ज़्यादा होने की वजह से आबोहवा में तनो पाया जाता है। जैसे खते इस्तिवा के करीब गर्म, जबकि खते जिद्दी की जुनूब में मोतदल आबोहवा पाई जाती है। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का कुछ हिस्सा शुमाल की जानिब साहिल तक है। समंदर से आने वाली हवाओं की राह में उमूदी चट्टानों के मज़ाहम होने की वजह से इस साहिली हिस्से में पहाड़ी या मज़ाहमती बारिश होती है, लेकिन बुलंद ज़मीन के पीछे की तरफ इन हवाओं का असर कम होता है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। तो ये जवाब भी यहाँ मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर 4 यानी दाल है, भारत और ब्राज़ील की आबोहवा का मवाजना कीजिए। भारत और ब्राज़ील की आबोहवा का मवाजना कीजिए। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 2 जदुल बने हैं, एक भारत है और एक ब्राज़ील है, और हम इन दोनों की आबोहवा का मवाजना करते हैं। तो जवाब देखिए, पहले नंबर का पॉइंट है, भारत की आबोहवा मानसूनी किस्म की है। भारत की आबोहवा मानसूनी किस्म की है, जबकि ब्राज़ील की आबोहवा मुंतक़े हर्रा किस्म की है। ब्राज़ील की आबोहवा मुंतक़े हर्रा किस्म की है। खते सरतान, भारत में दूसरा पॉइंट, खते सरतान मुल्क के दरमियान से गुजरता है। इस इलाके में सालाना औसत दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, जो जुनूब की सिमत बढ़ता है जाता है। जबकि ब्राज़ील में है, मुल्क के शुमाल से खते इस्तिवा गुजरता है। भारत से खते सरतान गुजरता है जो कि दरमियान से गुजरता है, जबकि ब्राज़ील के शुमाल हिस्से से खते इस्तिवा गुजरता है जिसके करीब गर्म आबोहवा पाई जाती है, जबकि जुनूब से खते जिद्दी गुजरता है, इसके करीब मुतदल आबोहवा पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है,
भारत के साहिली इलाकों में अक्सर गर्दबाद तूफान आते हैं जिससे बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। गर्दबाद तूफान यानी साइक्लोन। भारत के साहिली इलाकों में अक्सर गर्दबाद तूफान आते हैं जिससे बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है, जबकि ब्राजील में गर्दबाद तूफान कभी कभार ही आते हैं। ब्राजील में गर्दबाद तूफान कभी कभार ही आते हैं। 4 नंबर का पॉइंट है, ज्यादातर बारिश जुनूब मगरबी मानसून हवाओं से होती है। ज्यादातर बारिश जुनूब मगरबी मानसून हवाओं की वजह से होती है, जबकि ब्राजील में है ज्यादातर बारिश शुमाल और जुनूबी मशरकी तिजारती हवाओं से होती है। ज्यादातर बारिश शुमाल और जुनूब मशरकी तिजारती हवाओं से होती हैं। 5 नंबर का पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, बारिश गैर यकीनी होती है। भारत में बारिश गैर यकीनी होती है, जबकि ब्राजील में है अमेज़न की वादी में रोजाना बाकायदगी से बारिश होती है। अमेज़न की वादी में रोजाना बाकायदगी से बारिश होती है। तो बच्चों, इसी के साथ आज हमने सवाल नंबर 4 के जो मशकी सवाल जवाबात थे ये मुकम्मल कर लिया। हमने तमाम सवालात के जवाबात का मुताला किया और उसका बखूबी यहाँ पर जो है इल्म हासिल किया। अब उम्मीद की जाती है कि जो भी मालूमात आपको दी गई है वह आपके समझ में आई होंगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।